جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 442 یعنی 442ویں ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس ایپیسوڈ میں آپ کو اپنے یورپ کے ٹور کے دوران ایک واقعہ ہے وہ گوش گزار کروں گا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اس کا ایپی سینٹر جو مین ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو جو اصل ہوتے ہیں وہ نیکی یاد رکھتے ہیں. وہ میاں صاحب کہتے ہیں اصل نال جے نیکی کریے تے نسلاں نہیں بھلاندے. تو پرتگال میں پہلے ہالینڈ گیا جب میرا فرسٹ ٹور تھا یورپ کا. کراچی سے دبئی سے زیورچ یعنی سوئٹزرلینڈ، زیورچ سے ہالینڈ، اور ہالینڈ میں قیام کے دوران بیلجیم جانا ہوا، فرانس جانا ہوا. پھر امیگریشن کے سلسلے میں پرتگال کا ٹور لگا. پہلے جب ہم گئے تو کچھ معاملہ بنا نہیں، ہم کوئی ایک ہفتہ رہ کے واپس آ گئے. پھر ایک ماہ کے بعد تقریباً دوبارہ پروگرام بنا. وہاں پہ گاندھی ریسٹورانٹ لیزابون میں، سینٹرم میں، اور وہ لڑکے امرتسر سے تعلق رکھتے تھے. ظاہر ہے جب کھانے کی باری آئی تو وہاں پہ پاکستانی ہوٹل ڈھونڈنا مشکل تھا، قریب بھی مشکل تھا. تو لیزابون سینٹرم میں یہ گاندھی ریسٹورانٹ، وہاں سے حلال فوڈ مل گیا. اس طرح ان سے الیکس لیک بھی ہو گئی. امیگریشن لی، پاکستان آ گیا. جب واپس گیا تو انڈین دوستوں کے رویے سے متاثر ہو کے، وہ سکھ تھے امرتسر کے، پاکستان سے جاتے ہوئے میں ان کے لیے مٹھائی بھی لے گیا اور کچھ اسٹیج ڈراموں کی ویڈیوز بھی لے گیا. وہ ان کو دیں، بہت خوش ہوئے. واپسی کا سفر میں نے پرتگال سے وایا اسپین، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ تک بائی روڈ کیا، یعنی جس کو آپ ڈنکی کہتے ہیں. وہ کسی اور ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. تو ہالینڈ سے جب پھر امیگریشن لینے کے لیے لیزابون جانا پڑا تو ایئرپورٹ سے سیدھا میں گاندھی ریسٹورانٹ پہ گیا. ویسے تو وہاں پاکستانی تھے جن کے پاس میں پینگ گیسٹ تھا. جب پہلی دفعہ گیا تو ایک پرتگالی لیڈی کے ہاں ایجنٹ تھی، وہاں میں پینگ گیسٹ رہا. وہ کوئمبرا جگہ ہے لیزابون سے کوئی 300 کلومیٹر دور. اس کے آگے ایک ٹاؤن ہے پوکاریسا. میں وہاں پہ تقریباً 20-25 دن ٹھہرا تھا. جب دوسری دفعہ امیگریشن ریول کے لیے گیا تو ریول تو ہو گئی. اب مجھے واپس پاکستان آنا تھا. ریٹرن ٹکٹ سستی ملتی ہے، سنگل ٹکٹ مہنگی ملتی ہے. میں مقررہ دن ایئرپورٹ پہنچا. لائن بہت لمبی تھی. بکنگ کاؤنٹر پہ لیٹ ہو گئے، فلائٹ چلی گئی. اب میں نے واپس آنا تھا.
लिस्बोन में ही। अब मुश्किल ये हो गई कि मैंने अपने हिसाब से डॉलर वगैरह जेब में बचा के रखे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फ़्लाइट मिस हो जानी है। अब मैं बहुत परेशान हुआ, क्या किया जाए, क्योंकि अगली फ़्लाइट कोई 4 दिन बाद थी। मेरी पॉकेट मनी जो थी, मैं सोच रहा था कि इससे कैसे गुजारा करना है। वहाँ लिस्बोन मेन सेंटर में एक फुआरा वाला गार्डन है, बड़ा मशहूर है। आफ्टरनून तकरीबन सारे पाकिस्तानी, इंडियन जितने भी एक्सपेक्टिएट हैं वहीं पे जमा होते हैं। मैं वहाँ घास पे लेट गया, सोच रहा था अब क्या करूँ। अगर एक टाइम का खाना खाऊँ, इतने, 2 का खाऊँ इतने, 3 का खाऊँ तो इतने पैसे, फिर 3 दिन है। फिर सबसे बड़ा मसला रहाइश का था कि रहना कहाँ है। अगर होटल में रहूँ तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी कश्मकश में मुब्तला था। मैंने कहा चलो गांधी रेस्टोरेंट पे चलते हैं, उन लड़कों से जाकर मैं डिस्कस करता हूँ। मैं चला गया, जाके बैठा। उन्होंने मेरे चेहरे से ही अंदाज़ा लगा लिया मेरी परेशानी का। कहने लगे क्या बात हुई है। मैंने कहा मुझे ये मसला हो गया, मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है, 3 दिन बाद है, और मेरे पास अभी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत वीक है। मैंने कहा मुझे यहाँ कोई कमरा देख दो और कोई लोएस्ट रेट पे देख दो। मेरे भाई हैं उधर हॉलैंड में, बेल्जियम में, तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ से जितनी ज़रूरत है मंगवा लूँगा, आपको पे कर दूँगा। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। जो रेस्टोरेंट का ओनर था, इंडियन, उसने मुझे गले लगा लिया। कहते हैं शान भाई आप क्यों घबरा रहे हैं। मैंने कहा जी बात ही कुछ ऐसी है। कहता है आपने मुझे क्या समझ रखा है। मैंने कहा जी आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप मुस्कुरा के मिलते हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो कहने लगा नहीं, ये बहुत कम है, आपने मेरा गलत अंदाज़ा लगाया। मैंने कहा मेरा मसला हल करो। यकीन करें, उसने बेल दी, उसका असिस्टेंट आया, उसने अपनी पॉकेट से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली, अपने असिस्टेंट को दी और कहा कि एहसान भाई को गाड़ी में बिठाओ, इसे मेरे फ्लैट में ले जाओ, मेरा रूम उसे खोल के दे दो। और मुझे कहने लगा नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना आपको मेरे रेस्टोरेंट से जाएगा। आप मेरे मेहमान हैं, मेरे कमरे में रुकें, जिस दिन आपने एयरपोर्ट जाना मैं आपको खुद छोड़ने जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी है, ये मुझे को अच्छा नहीं लग रहा। वो कहने लगा नहीं कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी सर्विस है। आपने जिस तरह, मुझे कहता आपने जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया, मुझे याद रखा। आपकी गुफ्तगू ये बताती है कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड है, आप अच्छे घराने से हैं, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। यकीन करें, उसने मुझे अपने असिस्टेंट के साथ रूम में भेजा। वेल डेकोरेटेड रूम था, अटैच बाथ था, टॉवल वगैरह मिल गया। वैसे मैं सुबह के टाइम निकल आता था सेंटर में, बस नंबर का मुझे उसने बता दिया। शाम को मैं खाना खा के कई दफ़ा रेस्टोरेंट से चला जाता था। वो मुझसे टेलीफोन में राब्ते में रहता था। अगर कभी ऐसा नहीं होता तो वो खाना घर भेज देता था। इस तरह 2-3 दिन मैं उसके यहाँ रुका। रात को वो ज़ाहिर है रेस्टोरेंट बंद करके आ जाता था, गपशप रहती थी। वो मेरा बड़ा ख्याल करता था। ही वॉज ए क्वाइट नाइस कोऑपरेटिव जेंटलमैन। आई नेवर फॉरगेट हिम। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। इस तरह जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी
वो स्पेशल उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, मुझे लिस्बन एयरपोर्ट पे लेके गया। कहने लगा अब मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आपको बोर्डिंग कार्ड नहीं मिल जाएगा। ऐसे ही हुआ, मैंने बोर्डिंग कार्ड लिया, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी आंखों में यकीनन आंसू तैर रहे थे उस वक़्त कि इतने अच्छे लोग भी हैं जो किसी की छोटी सी नेकी को याद रखते हैं। था वो एक गैर मज़हब, गैर मुस्लिम, लेकिन सिर्फ हम ज़बान था कि अमृतसर से था, मैं भी पंजाबी बोलता था, वो भी पंजाबी बोलता था। ये वाक़या मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की, कोऑपरेट किया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।